ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਐਂਡ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ GT ਰੋਡ ਗੁਰਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਲਾ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਦ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਐਂਡ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ GT ਰੋਡ ਗੁਰਾਇਆ ਜਲੰਧਰ। पंजाब प्लस चैनल पर थोड़ा स्वागत है। जैसे हैं गुरु कृपा हैल्थ केयर एंड रिकवरी विला जो लंबे समय तो उन्होंने पेशेंट्स को एक नवी जिंदगी दे रहा जो नशे की दलदल में फसे हुए हैं उन्होंने पेशेंट्स को नवी जिंदगी दे रहा जो डिप्रैशन के नाल ग्रस्त ने। और ये एक ऐसा सेंटर है जिहदे तुहानूं एक एकांत वातावरण और बहुत वधिया एटमोसफेयर अंदर आके मिलता। और सब तो पहला गल कर रहे हैं जो फ्रंट ऑफिस से वीर जी बैठे ने मेरे सामने सब स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सो मच जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਘਬਰਾ ਨਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਮੰਥ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੰਗਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਜਿਮ ਔਰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਸ ਖੇਲਦੇ ਨੇ
ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡ 'ਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਹੈਬ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ। ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਨ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲकुल ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ है। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ, और गुरु कृपा, जो नाम भी गुरु कृपा है और है भी भगवान की कृपा। यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थी जी के साथ, और मैडम रीनू हमारे साथ हैं, और मैडम नवजोत हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है जी। थैंक यू। आप एक ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जो, क्योंकि किसी नशे वाले पेशेंट को रिहैब करना, उसको एक नई जिंदगी देनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा नशे की दलदल में धंसे होते हैं आपके पास आते हैं, सबसे पहले क्या उसका प्रोसीजर रहता है कि पेशेंट आया नशे वाला, पूरा नशे में धुत होते हैं, उदास होते हैं और बहुत ही प्रेशर में होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमने तो सुधरना नहीं है, और पेरेंट्स को भी नहीं लगता होता कि ये लोग सुधरेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपके पास आते हैं, आप रिजल्ट दिखाते हो उनको, तो उनको एक खुशबू और एक उनको लगता है कि नहीं, हमारी दुनिया भी है जी। देखिए, ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का, नशा या और कोई बीमारी का एक प्रोसीजर होता है। तो हर बीमारी का एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले पेशेंट जब आपके पास एक प्रॉब्लम में आता है तो आप उससे बैठ कर बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका थरोली हिस्ट्री को खंगालते हैं कि क्या किस वजह से उसने नशा शुरू किया है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि नशा प्रॉब्लम नहीं है, नशा एक सोल्यूशन है जो पेशेंट ने बना दिया है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज़ के थ्रू कि पेशेंट एक्चुअली किस चीज़ से जूझ रहा है। कई पेशेंट्स फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोलते हैं कि उनको घबराहट होती थी, तो पहली बार किसी दोस्त ने नशा कराया तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हुआ लाइफ में, तो जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी आप उसके साथ ही लगने लगेंगे। बाद में उसे नशे के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि इसके बिना काम ही नहीं चल रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये सब पता चले। तो ऐसे से हम टैकल करते हैं पेशेंट्स के साथ, पूरे उनके साथ कंपैशन रखकर, उनको मरीज मानकर, उनको दोषी मानकर नहीं, उनको मरीज मानकर हम उनको असेस करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम की रूट कॉज तक। कि जब पेशेंट आते हैं, जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो इनको एक रिलीफ सा महसूस होता है, उनको लगता है कि मेरे काफी कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। क्या कहते हैं? क्योंकि जब वो अपनी फैमिली से बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी फैमिली उनको नहीं समझती है। जब वो हमारे पास बात करने आते हैं, अपनी कुछ हिस्ट्री बताते हैं, तो जैसे हम उनको जज नहीं करते, बट फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको, मतलब जो उन्होंने गलतियाँ की है वो उनको ताने देने लग जाते हैं कि हाँ तुम लोगों ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। बट हमारे पास वो मतलब ईजिली बात शेयर कर सकते हैं हमसे, क्योंकि हम जज नहीं करते उनको, या हम मतलब एक अच्छी रैपो बन जाती है हमारे साथ उनके कुछ ग्रुप सेशंस वगैरह 1-to-1 सेशन चलते हैं, तो एक रैपो बन जाती है, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिससे उनको लगता है कि हम इजीली इनसे बात शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स निकाल सकते हैं। फिर उनको हम कुछ स्ट्रेटेजीज बता देते हैं कोप अप करने की, कैसे कैसे आप कोप अप कर सकते हो, इससे उनकी हेल्प हो जाती है। तो जी क्या कहना चाहेंगे, ये रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटर है, जब हम उनको अपने रिजल्ट दिखाते हैं, उनकी बाइट्स हम दिखाते हैं या हम उनको बातचीत कराते हैं, तो उनमें एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप जब दिखाते हैं कि इसकी तो दोनों बाहों भरी हुई थी टीके लगा लगा कर, और हमने इसको भी जिंदगी दे दी। क्या कहना चाहिए? जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ड्रग्स के दलदल में एकदम फंसे हुए होते हैं। जब हम उन्हें रिजल्ट्स दिखाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर सामने वाला छोड़ सकता है, इस दलदल से निकल सकता है, तो शायद मैं भी निकल सकता हूँ, मैं भी निकल सकता हूँ। जब वो अपने साथ वालों से बात करते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं, ग्रुप थेरेपीज होती है, उनके साथ जब वो बात करते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं,
फिर वो उन्हें लगता है कि हम भी इस दलदल से निकल सकते हैं। जैसे कि सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त जी ने ड्रग्स से निकले हैं, उनकी इतनी बड़ी है, हनी सिंह निकले हैं, उनकी जब ये ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं, ये तो हमारे हॉस्पिटल से नहीं है, लेकिन जब ऐसे देखते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इस ड्रग्स के दलदल से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात सन्नी जी ने बाद में कही थी कि कुछ तो लोग कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को कहने वाला जो सिस्टम है, आप लोगों को बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। जो भी नशे की दलदल में धंस चुके हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनको बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनना है, उनको अपनी ज़िंदगी जीना है। अगर वो बाद में फिर से जाते हैं तो फिर से वो उस चीज़ में फिर से दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि जब उनको कोई मैंने स्टोन जाते ऐसे मारने लग जाता है। मैंने क्या कहना चाहेंगे कि ड्रग छोड़ने के बाद भी आप लोग के साथ अगर वो टच में रहता है तो आप उसको मोटिवेट करते रहते हैं, आप उसका हौसला फिर बढ़ाते रहते हैं। जी जी जी, देखिए फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी ट्रीटमेंट में आप फॉलोअप लेते रहेंगे। हम तो कहते हैं ना सिर्फ पेशेंट बल्कि फैमिलीज का भी फॉलोअप होता है। और मेरे गुरुजी एक टाइम पे कहते थे कि पेशेंट बाद में रिलैप्स करता है, पहले फैमिली रिलैप्स करती है। कि फैमिली रिलैप्स करने का मतलब है कि फैमिली थोड़ा ढील देती है या फिर से वो अपने पुराने तानों या कुछ और एटीट्यूड्स में आ जाते हैं कि जिनसे उन्हें लगता है कि नहीं अब पेशेंट तो ठीक हो, अब ये कैसे कुछ गड़बड़ कर सकता है, जबकि ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता है। यहाँ से निकलकर भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फॉलोअप भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है और उससे पेशेंट में और सुधार देखने को मिलता है। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पेशेंट आता है तो उनका और भी मोटिवेशन बूस्ट होता है। वो तो सोचते हैं कि हम ठीक हो गए थे, बस बढ़िया है, पर टाइम के साथ उन्हें लगता है कि अच्छा हम में और सुधार आ गया है जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी। टिन्नू मैडम क्या कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी, जैसे हम लोग ये नहीं कि आज आया बंदा और वो नशे से दूर हो गया, कंसिस्टेंसी जैसे आप लोग ना तो ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि जब वो थोड़ा सा नॉर्मल में आ जाता है, क्योंकि घर वाले होते हैं, उनके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, उनको तो लगता है हाय हमारा बेटा सही हो गया, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं, आपको मालूम होता है कि ये फिर से लैप्स कर सकता है और आप उसको धीरे धीरे एक कंसिस्टेंसी के साथ एक ग्राफ आपका जो ऐसा ग्राफ रहता है कि आपने उसको धीरे धीरे एक नई जिंदगी देनी है। हाँ जी, ये तो है कि वो रिलैप्स हो सकता है, चांसेस होते हैं कि अगर उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाए, अगर वो फॉलोअप के लिए ना आए, अगर जैसे वो अपने फॉलोअप के लिए आते रहेंगे तो मोटिवेटेड होते रहेंगे कि हाँ भी हम कर सकते हैं। जब वो सर से बात करते हैं, डॉक्टर सर से आके फॉलोअप में, तो सर उनको समझाते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ तरीके बताते हैं। अगर उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो वो अपनी बाहर की जो पीयर कंपनी उनसे मिलेगा या कुछ फैमिली इशू होते हैं या जो उनके कारण, तो फिर वो उससे चांसेस है कि वो रिलैप्स हो जाता है। अगर वो एक मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग चले तो हाँ कि मतलब फिर नहीं है कि वो 100% चांसेस है कि वो ठीक रह सकता है, अगर जितना सर ने बोला होगा डॉक्टर्स ने कि आपके इतने फॉलोअप आपने आना है। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग उनको एक रूटीन में ले जाते हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होता कि आपने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे योग करना है, इतने बजे चाय पीनी है, तो उसको वो अडिक्ट रहते हैं कि अभी हमारा ब्रेकफास्ट आएगा। वो ब्रेकफास्ट जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होता, कभी उनको भूख लगती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि जब यहाँ आता है तो उसका एक सिस्टमैटिक वे से हम लोग जब उसको टाइम टेबल देते हैं, अभी हमने बच्चों को देखा कि वो खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, कोई बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपने आप, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा था। क्या कहना चाहेंगे कि उनमें जीने की राह आ जाती है और वो लोग जब इससे थोड़ा सा अपने आप को देखने लग जाते हैं और हम लोग उनको रूटीन देते हैं, बढ़िया ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं, चाय देते हैं, योग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, जिम है हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सब में एक बच्चा होता है ना। हमारे साइकोलॉजी में भी यही कहते हैं कि कोई भी इशू तभी शुरू होता है जब हमारे इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है। इसलिए उनके पास हम जैसे उनके टाइम टेबल है एक दिन में, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 दिन लगते हैं, पर वो जैसे एडजस्ट करने लगते हैं उनमें उनको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखती है, अच्छा लगता है, फील अच्छा करते हैं कि हाँ मुझे भी कोई अटेंशन दे रहा है, मेरे साथ कोई खेल रहा है, जो उन्होंने कई सालों से वो भूल चुके थे, नशे में चले गए थे, तो वो आनंद जो कह सकते हैं कि ज़िंदगी का वो भूल गए थे, अब उन्हें वो मज़ा आता है अपने साथ वालों के साथ में, अच्छी चीज़ें करते हैं, साथ में खेलते तो मज़ा आता है। वो एक
एक्सपेक्टेशन उनके होती है कि अब हम ये करेंगे, इंतज़ार करते हैं आज ये खाने को मिलेगा, आज ये खेलने जाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, आज गाने गाएंगे, आज ड्राइंग करेंगे, आज कुछ और करेंगे। ऐसे करके वो अपना जो क्रेविंग्स होती हैं या ड्रग्स के प्रति जो माइंड है उनका डाइवर्ट होता है, वो ऐसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सेंटर जिसमें डॉक्टर्स की टीम है, आप हैं और डॉक्टर्स की टीम है, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे उनको वो प्रेशर से निकल रहे हैं, तो हम लोग उनको तड़के जैसे होते हैं कि एक तड़का 2-3 तड़के देते हैं और उसके साथ साथ हम उनको बढ़िया खाना और उनका जो भी उनको पसंद होता है बढ़िया, जैसे कैरम बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बाकी गेम्स की बात कर रहे हैं, तो गेम्स खेलते हैं तो एक पॉजिटिव माइंड उनका चलता है और उसमें वो बहुत खुश होते हैं और धीरे धीरे वो जब उनको लगता है कि नहीं यार जीने की राह भी है हमारे पास, और वो इससे निजात पा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी के लिए। आप शुरू से पुरातन तत्व से टाइम के भी अगर आप ऐसे चिकित्सालयों को देखेंगे जो ऐसे इश्यूज को डील करते थे, तो वहाँ पे वो टिपिकल हॉस्पिटल जैसे नहीं होते थे। वहाँ होता था कि माहौल थोड़ा खुला हो, पेशेंट बात करें, पेशेंट्स खेलें, पेशेंट गार्डन्स हो। जहाँ से मेरी एमडी हुई है निमहांस में, वहाँ पे गार्डन्स हैं आज भी। तो वैसा ही इन्वायरमेंट इन्विजन उस पहले टाइम से ही करा जाता था कि ऐसे जिनको भी कोई मानसिक विकार है, नशा अब एक टाइप का मेंटल डिसऑर्डर ही मानते हैं, तो उनको ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। उनको आप बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह सफ़ेद चादर में लिपटा के या 2 ड्रिप लगा के वैसे कन्फाइंड माहौल रख के वैसे ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने कहा कि पेशेंट्स एक खुले माहौल में रहते हैं, एक ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब गेम्स हैं, सब एक्टिविटीज़ हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे, बोल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ऐसा माहौल बहुत ज़रूरी होता है। टिपिकल एनक्लोजर वाला माहौल या टिपिकल 4 दीवारी वाला माहौल जैसे हम नॉर्मल हॉस्पिटल्स में, नॉर्मल किसी और ट्रीटमेंट में जैसे होता है, वैसा इन पेशेंट्स पर काम नहीं करता। ये शुरू से ही चला आ रहा है। जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ओपन एनवायरनमेंट रखते हैं। जहाँ से मेरी एमडी की पढ़ाई हुई है निमहांस, वहाँ पे भी ऐसे गार्डन्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स ओपन में घूमते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। बैंगलोर गार्डन सिटी इसीलिए इसीलिए बनाया गया था कि जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनका भला हो सके, उनको रख सके। वो अंग्रेज़ों की वो स्कीम आगे हो नहीं पाई, वो अलग बात है। सर, आप सभी ने हमें इतना समय दिया और हमारे देखने वाले दर्शकों को अवेयर किया, क्योंकि आज नशा जो है वो केवल ये नहीं है कि जो लोग ड्रग अब्यूज्ड हैं वो आ जाते हैं, और भी नशे हैं। लोग रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, तो उनके लिए भी आज जो जैसे आपने उनको काउंसिल किया, उनके साथ बातचीत आपने हमारे चैनल के माध्यम से की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।